अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? I'm good, I'm good. Thank you so much, sir, for taking out time. It's my pleasure to have you on the session. As we discussed, the main agenda of this session is to get as much knowledge from industry professionals who are working in different fields. So before we start the session, I would really happy if you can share about yourself. क्या चल रहा है? कहाँ पर हैं आजकल? How's work and everything? Sure. So I am Sahar. I was born and brought up from Saudi Arabia. I am from the design industry. Right now I'm heading design for Story Room Social. Iske alawa, I've been living in Pakistan for almost 8 years. I got married and then I'm back to Saudi. अभी बीच में हालात कुछ इस तरह चल रहे हैं कि मैं सऊदी और पाकिस्तान के बीच में बैक एंड फोर्थ चल रही हूँ। So this is how life has been right now. Perfect, perfect. I'm pretty much sure everything is stable and going good for you. To Alhamdulillah. start the conversation, the main factor that अभी आपने बताया that you born in Saudi and then now you're going back and forward in Pakistan and Saudi. So I'm pretty much sure you have an idea that design industry related to Saudi and related to Pakistan is totally different thing. When it comes to Saudi it's something जो कि अभी 5 साल में बहुत growing industry होने वाली है. And now everyone is moving and pivoting from I'll say Dubai or UAE to Riyadh, or a lot of new openings, a lot of new brands and companies are opening in Saudi as well. So started off, how was your life in Saudi? I'm pretty much sure being a designer is something a lot of people are passionate about. So how things started off, like are you someone who is like born like that कि यार चलो ठीक है मुझे डिजाइनर ही बनना है, or it's something कि you started off with something and then move toward the design thing? Because to understand it betterly we need to understand कि dynamics और demographics बहुत अलग अलग होते हैं when we discuss about a country जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी होती है कि वहाँ की इंडस्ट्री पाकिस्तान की इंडस्ट्री से आई थिंक लाइक 10-15 टाइम्स तेज़ चल रही होती है, एंड द बजट्स दैट यू आर वर्किंग इट्स लाइक फार, फार, फार better than budgets in Pakistan. So your work ethics and your overall work environment do change. With respect to there's also another point कि look, in Pakistan, we usually have designers who are doing only one thing. Like, ठीक है, designer हैं तो graphic design कर रहे हैं और social media की post बना रहे हैं. But when you're working for companies outside Pakistan, you need to understand कि आपको बहुत सारी चीज़ों को notice करना होता है, जिसमें आपके publication skills होते हैं, आपकी speaking skills होते हैं, हाउ यू ब्रांड योरसेल्फ, क्योंकि ओवरऑल आपकी ग्रोथ में सिर्फ आपका स्किल सेट नहीं होता, आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके अपना स्किल सेट को ग्रो करते हैं। सो टेल मी अबाउट द ओवरऑल स्टोरी, हाउ लाइफ स्टार्टेड, हाउ इज़ एवरीथिंग? Alright, so basically अगर हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो I think back in grade 9 when I was completing my I was actually I was in the middle of my O levels. ठीक है, मेरी सारी स्कूलिंग इनिशियल स्कूलिंग सऊदी अरेबिया से हुई थी है। तो यहाँ पर कैम्ब्रिज सिस्टम चलता है एंड दैट्स हाउ आई न्यू कि मुझे वही चीज़ करनी है, ठीक है। मैंने अपना शुरू करियर साइंस में ही किया था। ओ लेवल्स, ए लेवल्स साइंस से ग्रेजुएट किया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा बट आई हैड दिस थिंग अ लिटिल कनेक्शन विद डिज़ाइन इन टर्म्स ऑफ स्केचिंग, इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। मुझे ऐसा लगता था स्कूल के अंदर मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही है या मेरा हाथ उस पे सेट है। एक चीज़ होती है ना जब आप एकदम व्हेन यू स्टार्ट डूइंग स्केचिंग समथिंग आप उसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो वाक़ई बहुत अच्छा किया। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ समथिंग इट वाज़ इनग्रेन्ड इन मी लेकिन ये है कि मुझे वो चीज़ पता नहीं थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई कंप्लीटेड माय ए लेवल्स उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब चलो एक फ़ील्ड चूज़ करनी है तो कमिंग फ्रॉम अ देसी पेरेंटिंग आई फ़ील हमारे पास सब ये चाहते थे उस ज़माने में बैक इन 2016, 2013 के हमारे घर में एक डॉक्टर हो। साइंस के ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं एंड यू नीड टू बी दैट चाइल्ड बिकॉज़ आई एम अ फर्स्ट बोर्न चाइल्ड इन माय फैमिली तो हमारे पास सब बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर। सो चूजिंग आर्ट फॉर मी वाज़ समथिंग लाइक अ नो गो थिंग। तो शिफ्ट इस तरह से हुआ कि माय सर्कमस्टेंसेस चेंज्ड वी मूव टू कराची। उस ज़माने में जब मैंने ए लेवल्स कंप्लीट किया था माय एंटायर फैमिली मूव टू कराची
एंड वहाँ पर भी ये हुआ कि आई हैड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज़ मैंने उस बार अपने आप को टेलर ऐसे किया हुआ था कि मुझे पाकिस्तान में मूव नहीं होना है। बिकॉज़ यू नो द आपके पास क्या कहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से नहीं थी। आई हैड बिगर ड्रीम्स, बिगर एम्बिशंस कि बाहर निकलना है, बाहर और चीज़ें करनी है। बिकॉज़ लिविंग इन सऊदी अरेबिया एंड मूविंग टू पाकिस्तान वाज़ समथिंग जस्ट नेवर द पार्ट ऑफ द प्लान। बट वही बात है ना कि अल्लाह ताला ने आपकी सारी सर्कमस्टेंसेस को सेट किया हुआ होता है। तो आई मूव्ड हियर, यहाँ पर फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह हो रहे हैं डिज़ाइन में और इस तरीके से तो फिर आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन अरीना मल्टीमीडिया। उसके थ्रू फिर मैंने अपनी डिज़ाइन जर्नी शुरू की। इनिशियली आई डिड नॉट जंप इनटू द डिज़ाइन फील्ड, आई टॉट इन सेवरल स्कूल्स, आई हैव डन एडमिन वर्क फॉर स्कूल्स। मतलब कहीं न कहीं वो एक चीज़ थी कि यार आई नीड टू जस्ट स्टार्ट बीइंग इंडिपेंडेंट। तो वो चीज़ जब मैंने शुरू की, उस हिसाब से फिर मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं यार, आई कैन डू अ लॉट मोर देन दिस एंड आई एन्जॉय डूइंग डिज़ाइन। लेटर ऑन जब मुझे पता चला कि यार मैंने चलो एक कोर्स किया है, उस कोर्स के बेस के ऊपर मैं फ्रीलांस काम तो कर रही हूँ एंड आई एम रियली एन्जॉयिंग डूइंग दैट। एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि आई मूव्ड मोर एंड आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी इन वन ऑफ द एनजीओ सर्विसेज इन कराची। वहाँ पर उनके साथ कोलैबोरेट करके मैंने काम किया फुल टाइम एंड एवर सिंस देन इट्स लाइक अ नो स्टॉप थिंगी फॉर मी। आपको एक दरवाज़ा खुला, आप वो कहते हैं ना सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट स्टेप, उसके बाद फिर आपकी आसानी हो जाती है। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ माय जर्नी हैज़ बीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद यही है कि राइट नाउ आई एम हेडिंग द डिज़ाइन फॉर स्टोरी लूम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक थिंग्स वर्क्ड आउट फॉर मी। Perfect, perfect. I'm pretty much sure कि it's not a easy one time step. You start doing something और उसके साथ साथ आप सीख रहे होते हैं. The main idea, the main question that I have in mind right now कि I have seen people who are from Saudi and after their A levels they usually come to Pakistan and do their education complete from Pakistan because of the reason कि एजुकेशन पाकिस्तान में थोड़ी सी चीप है, आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, मेरा एक सवाल है क्या देयर इज ऑलवेज अ डिबेट ऑफ अ कोर्स अरीना मल्टीमीडिया या इस तरीके के जो कोर्स करवा रहे होते हैं लाइक एआर और 2 ईयर के कोर्सेज या कोई डिप्लोमा कोर्सेज एंड वी हैव अ डिबेट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज वर्सेस डिग्री. So it's a different concept. What I personally believe that it's always depend upon the student कि वो उससे क्या चीज़ को टेक आउट कर रहा होता है. बिल्कुल, I see a lot of people who has privilege to go to universities and get their degrees from there. But diploma courses are totally different. I see Arena Multimedia के बहुत सारे लोग ही हैं जो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सिर्फ टूल्स को चलाने तक ही सीख सकते हैं उसको. दे डोंट हैव दैट क्रिएटिविटी और वो अपने अपने स्किल सेट को इतना अच्छे तरीके से बेहतर करते नहीं. So बिल्कुल। when you come here and when you come to Pakistan, why didn't you go for like a 4 year degree program? Because what I personally believe, a lot of people have that mindset कि यार कुछ भी हो डिग्री डिग्री होती है. ठीक है. बिल्कुल। I wanted to know when you come to Pakistan, what are the key steps that you thought कि यार okay fine I want to go to Arena Multimedia या do any XYZ courses from XYZ institute rather than doing the degree. How it helps you? What are the pros and cons pointers that you have seen ताकि लोगों को पता चले कि यार ये आइडिया था जो आपने दिमाग में रखा. व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग या स्किल रिलेटेड जो चीज़ होती है उसमें इंस्टीट्यूट माइट गिव यू अ पर्क एंड बेनिफिट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, इफ यू आर गोइंग फॉर योर मास्टर्स, इफ यू आर गोइंग फॉर दैट थिंग, बट आप जब सऊदी से आई थी तो आपके पास एक्सपोजर था कि हाउ सऊदी लाइफ वर्क. अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन अ डिफरेंट वे कि वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं. तो जब आप बिल्कुल, यहाँ आए, आपने कोर्स क्यों करा, आपने डिग्री क्यों नहीं करी? सही है। सो बेसिकली जब हम यहाँ मूव हुए थे तो आई काइंड ऑफ अगेन लेट्स जस्ट कॉल इट दैट वे कि दैट्स हाउ यूनिवर्स वाज़, हाउ माय डेस्टिनी वाज़ शेप्ड। मैं जब यहाँ आई तो आई काइंड ऑफ मिस्ड आउट ऑन द एडमिशन डेडलाइन एंड in terms of design and when you talk about degree, we have only two options in Pakistan. One is IVS, Indus Valley School of Arts and Architecture, and the second is NCA in Lahore. इन दोनों के अलावा आपको कोई भी डिज़ाइन की डिग्री नहीं दे रहा एज़ सच, यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट डिज़ाइन बैकग्राउंड। आपको बाकी सारा कुछ मिल रहा है, आपको एआई
आई थिंक कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज भी आपको बहुत सारी मिल रही हैं, आपको मेडिकल के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डिज़ाइन एंड अ प्रॉपर आर्ट स्कूल, तो आई थिंक दीज़ आर द 2 ऑप्शंस दैट यू हैव। अब उसमें यही होता है कि अगेन इफ यू गेट द सीट यू डू गेट इट, वो नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई मसला नहीं है। आई फील degree is a very, very important aspect when you want to be a professional, when you want to move around the world and आपको international opportunities avail करनी होती हैं. And I feel in terms of finances, it's something, it's again a lot pricier, it's on the pricier side. ठीक है, तो आई फील उस चीज़ को आपने अगर किसी तरीके से कैप्चर करना है, इफ़ यू वांट टू हैव अ बिट ऑफ आप लेफ्ट आउट फील ना करो, उसके हिसाब से आई फील दीज इंस्टीट्यूट्स दैट आर देयर इन पाकिस्तान राइट नाउ वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं बिकॉज दे पॉकेट फ्रेंडली, वो आपको टूल सिखा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपको आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे आपको सिर्फ टूल्स ही सिखाए जाते हैं। अदर देन दैट, उसके अलावा अगर आपने अपनी डिग्री को एक्चुअली अपनी स्किल्स को एनहांस करना है तो उसके लिए आपने खुद ही मेहनत करनी होती है। एंड आई डन वन कोर्स दैट हेल्प मी इन 4 years ताकि मैं उस बैकग्राउंड के ऊपर ग्रो कर सकूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ मैं जब एजेंसी के अंदर जॉब कर रही थी, आई हैड पीपल हू वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स अगेन। किसी का फाइनेंस का बैकग्राउंड था, उन्होंने डिज़ाइन में शिफ्ट कर लिया, किसी का डेवलपमेंट का बैकग्राउंड था, वो डिज़ाइन में शिफ्ट हो गए। तो उन सबका यही चीज़ थी कि भई हमने डिग्री तो हासिल कर ली है, बट दोज़ 4 years दैट they've spent, it's of no use for them, not it's not of use to them. Why? Because उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो आई फील दैट इज समथिंग दैट इज लैकिंग हियर। उससे बेहतर है कि आप अपने 4 साल के एक ह्यूज अमाउंट आप एक स्पेंड कर रहे हैं एंड यू नॉट एबल टू इनकैश दैट, और उसके बाद आपने वापस से डिज़ाइन नहीं आना था या आपने वापस से कोई ऐसी चीज़ करनी थी जो कि इट वाज नॉट समथिंग दैट इज गिविंग यू पीस और हैप्पीनेस ऑफ योर हार्ट, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो इतने भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं यहाँ पर, जैसे अरीना मल्टीमीडिया हो गया, you've also got these online platforms जैसे कि डोमेस्टिका है, I've done courses from डोमेस्टिका as well. You've got Coursera के courses हैं। All these courses are really beneficial to you because आपने बेसिक एजुकेशन इससे लिया है, आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन आ गई है और उसके ऊपर फिर आप रिसर्च कर सकते हो। आपके पास अब तो ख़ैर काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का मौका मिलता है। गोइंग बैक टू योर पॉइंट व्हेन यू आस्क्ड कि भई सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आप शिफ्ट हुए, लोग पाकिस्तान से सऊदी जाते हैं। सो आई हैड अ पर्सनल थिंग जिसकी वज़ह से इट वाज़ अ फैमिली मैटर, जिसकी वज़ह से हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। But when I compare my life then and now, it's a huge difference. Why? In terms of exposure, in terms of how Saudi Arabia has grown, in terms of technology, in terms of exposure, Saudi Arabia अब बहुत बेहतर हो चुका है compared to when it was back in 2016. अभी पिछले 8 7-8 सालों में जितना सऊदी अरेबिया, उसको कहना चाहिए ग्रूम हुआ है, जितना वुमेन ओरिएंटेड हो गया है, वुमेन सपोर्टिव हो गया है, वो चीज़ पहले नहीं थी। पहले इट वाज़ वेरी क्लोज़्ड अप, इट वाज़ इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। हाँ, यू आर राइट दैट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान मूव हो जाते थे कि यार इस चीज़ को हम इस तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि पाकिस्तान में अगर जैसे एक बच्चे की फ़ीस आप सऊदी अरेबिया में दे रहे हो, तो उस एक बच्चे की फ़ीस में 4 बच्चे पढ़ लेते हैं पाकिस्तान में। तो इट वाज़ दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस, इतना बड़ा शिफ्ट था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ एक्सपोज़र दैट यू आर गेटिंग इन सऊदी अरेबिया, इट्स इनसेन। आपको वर्ल्ड क्लास इवेंट्स मिल रहे हैं, एग्ज़िबिशन्स हो रहे हैं, दे आर वेरी ओपन, उनका कल्चर काफ़ी ओपन हो चुका है। compared to how it was back in 2016. I'm really glad कि मुझे वो transition देखने को मिली है। Even when I came back to Saudi back in 2023, तो I was completely blown out of my mind because जो नया एयरपोर्ट है, it's completely run under women. आपको सारे चेक पॉइंट्स पे औरतें मिलेंगी and all of those things that were not there back in 2016. We agree on the point कि अगर मैं सिर्फ KSA की बात करूँ तो KSA has grown a very
drastically in a very different way and in a very positive way. With respect to कि आपने बात बिल्कुल ठीक करी है कि we need to understand the fact कि education outside Pakistan is a bit it's not a bit, it's a lot of expensive, and that's why It a is lot a of lot of people are expensive. a lot of people is gone to that. I also agree on the point कि online platforms, yes, they do have very differentiation fact in that overall experience and expertise of yours. अब उसके अंदर Coursera हो, Udemy हो, Domestika हो, there are like multiple courses online that you can do. But at the end of the day, being as a designer, it's not like a 9 to 5 job. It's not like you just it's directly connected to passion. What I personally That's believe, right. design is not about something. I see people who are doing design just because they wanted to do it, but I see people, at least like 80% of the people really wanted to do because they really like that thing. Either it's motion design, graphic design, or vice versa, any sort of design thing. So you They've know, got 3D as well. अब आजकल लोग 3D में भी काफ़ी yeah, it's also a part of it. Like for example, what I personally believe it पाकिस्तान के अंदर चीजें काफी डिफरेंट तरीके से होती हैं. बट अगर आप वही मीडियम वही पेस अगर किसी बाहर मुल्क के लिए कर रहे हैं या कहीं बाहर जाके वो काम कर रहे हैं तो यू विल गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड मनी एज वेल एज अ गुड लाइफस्टाइल. सो वो तो एक फैक्टर है. Now, moving to another point that I have right now is the main factor every designer is facing right now. Uh, the difference of portfolio. ठीक है. I see people who are doing graphic designing for 25,000 rupees. I see people who are doing graphic designing for 1 lakh rupees, and I see people who are doing much better than that. With respect to, you need to understand the fact that you can't always use a portfolio that is like 5 6 years ago, because every year every 6 months you are learning different things. And with respect to, you are working in Saudi right now, so you understand the fact that when a Pakistani national is working in KSA, UAE or any other country, वो सिर्फ अपने आप से नहीं, वो उन सब से लड़ रहा होता है कि वहाँ पे टैलेंट यूएई से भी होता है, वहाँ पे टैलेंट यूरोप से भी होता है, वहाँ पे टैलेंट उन स्कूल से होता है जिन्होंने बेसिकली बैचलर्स, मास्टर्स, PhD. परमानेंटली पीएचडीज, स्पेसिफिकली डिजाइन, इंटरेक्टिव डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती है. इट्स लाइक कलर थ्योरी एवरीथिंग. ठीक है, सो व्हेनेवर यू यू बीइंग एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, when you're working over there, you need to cope up with those skills because they are what I personally see. Being a designer, whenever I see work out from outside Pakistan, I was blown up with that thing कि यार कितना इसमें effort और कितनी thought process लगा. They because budget matters, but because clients matter, because project matters. ठीक है. I won't be saying or naming कि यार पाकिस्तान के डिजाइनर्स सोशल मीडिया की पोस्ट का लेवल ऐसा ही क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर क्लाइंट का बजट 50,000 रुपए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक डिजाइनर को आप 3 लाख रुपए देंगे, और उसका स्किल सेट भी उसी तरीके से होता है. तो मुझे 2 चीज़ बताओ कि यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको क्या लगता है किस तरीके से बेहतर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस फ्रॉम going from a 25,000 rupees designer towards a 5 lakh rupees of a designer? What are the key factors that you think is more important if you wanted to reach at that point? Because आप मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से कोरोना के बाद एजेंसीज़ बढ़ी हैं, ठीक है? हर इलाके के अंदर एक एजेंसी है, ठीक है? और अगर आप देखोगे तो आपको सोशल मीडिया की पोस्ट ₹10,000 से लेके आई थिंक, मैं शायद अगर गलत नहीं हूँ तो अगर मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान में था तो कोई 7 साढ़े 7,000 भी बना रहा था, एंड इट साउंड क्रीपी बट इट साउंड लाइक पाकिस्तान जॉब. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मास मार्केट, ठीक है, और ब्रांडिंग और ब्रांड डिज़ाइन और इन सब चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है. थोड़ा-सा उसमें बताओ व्हाट्स योर से ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ग्रोथ किस तरीके से देखते हो? अ because being an head is not just being like what I say, managing team. It's understanding the fact कि जितना
लैडर के आप ऊपर जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी उतनी बढ़ती हैं। हो सकता है आप काम या एग्ज़ीक्यूशन उतनी ना कर रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होती है कि यार मुझे हर चीज़ देखनी है। मैं कोई चीज़ अप्रूव करता हूँ या करती हूँ तो उसके बाद वो चीज़ आगे जाएगी, ठीक है? सो हाउ वाज़ योर लैडर? क्योंकि आई सी पाकिस्तान के अंदर ये एक हो चुका है कि अगर किसी को कुछ नहीं करना तो अरीना मल्टीमीडिया में एडमिशन ले लेता है। हमारे यहाँ अभी तक ये मिथ है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मीडिया साइंसेस कर लो। अ, हमारे यहाँ अभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग इज़ नॉट अ व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ आई नीड टू एक्सप्लेन देम व्हाट आई डू एंड दे require somewhere around like half an hour or an hour just to understand the fact कि how the hell I'm working UAE and what I do because हमारे यहाँ माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि गेटिंग अ कार, गेटिंग अ होम, यू आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल नॉलेज इज सक्सेसफुल की डेफिनेशन हर बंदे की थोड़ी अलग होती है, ठीक है? नॉट नेमिंग इट लाउड बट अ मैकबुक कैन कॉस्ट मोर देन अ कार, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। एप्पल डिस्प्ले इज कॉस्ट मोर देन ऑन ऑल्टो, ठीक है? एन आईपैड माइट कॉस्ट यू मोर देन 3-4 मंथ्स ऑफ अ सैलरी ऑफ अ पर्सन, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो अब मुझे थोड़ा-सा अपने हिसाब से बताओ कि यार लैडर किस तरीके से आपने चढ़ी, ठीक है? आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि देखो अगर इतना ही सब कुछ सही होता ना, तो पाकिस्तान में अभी ग्राफिक डिज़ाइनर को व्हाइट कॉलर जॉब्स कंसिडर कर देना चाहिए। मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो वो शायद बड़े खुशी-खुशी कहता है और उसकी एक इज़्ज़त है। इंटीरियर डिज़ाइनर्स की इज़्ज़त है, आर्किटेक्ट्स की इज़्ज़त है, फैशन डिज़ाइनर्स की इज़्ज़त है। अच्छा, आप क्या करते हो? आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, ठीक है। मतलब उससे इतना ग्रो क्यों नहीं करोगे? इट्स आल्सो एन डिग्री, इट्स आल्सो एन आर्ट। व्हाई इट्स नॉट एक्सेसिंग ऑन दैट वे? So basically, you're right. You've actually touched the nerve here. It's okay. This is something I've really struggled with. शुरू में obviously when I switched from teaching because teaching is also considered a white collar job. इस पर ये टीचिंग तो मेरे ख्याल से इट्स लाइक द गोल्डन गोल्डन डिग्री इन पाकिस्तान। अगर आप टीचर हैं, तो आप तो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है? बट एक लेकिन I मेरा बट मेरा वही एक सवाल है, मैं उसमें एक चीज़ फिर से ऐड करूँगा, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि व्हाई टीचिंग? ठीक है, टीचिंग अगर पढ़ाना इतनी व्हाइट कॉलर जॉब है, यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, मैं अगर बताऊँ, आई हैव डिबेट्स विद पीपल एंड आई वाज़ लाइक शोइंग सम ब्रांडिंग और शोइंग सम एनीथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड आई थॉट कि यार ये देखो ये कितनी अच्छी है, इसके लिए इतने पैसे दिए एक बंदे ने। तो वो जस्टिफाई करना क्यों पड़ता है हमें अपना काम? ठीक है। so much. हाँ, so basically what I think here is जो कि बहुत बड़ा पेन पॉइंट शायद मेरे लिए भी वो ये था कि we don't have the kind of understanding and knowledge as a society. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये एक डिलेमा है कि आपने अगर आर्ट्स की डिग्री ले ली है ना तो भाई निकम्मा ही था। They don't know how much an arts degree cost. It is literally a lot expensive than आपको मेडिकल की जितनी आप दे रहे हैं ना तो उतना ही आपको पड़ जाता है एक प्रॉपर आर्ट स्कूल के अंदर भी, ठीक है? इट्स एक्चुअली दैट एक्सपेंसिव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान चौक है, तो पाकिस्तान चौक के अंदर आपको ₹10 के अंदर भी आपका पेपर आ जाता है, प्रिंट हो जाएगा सब कुछ, 50-100 रुपए के अंदर हो जाता है। तो एवरीबॉडी थिंक्स कि यार जब इतने सस्ते में हो रहा है तो ये इसकी मतलब पाकिस्तान चौक ही बंदा चले जाए ना, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर क्यों रखना है एंड ऑल दैट। आई स्टिल हैव अ फ्यू क्लाइंट्स जिनके पास ये होता है कि ये जो काम आप कर रहे हो ये तो फ्री में मेरा भाई का बेटा भी कर देगा, भाई की बेटी भी कर देगी, आप इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो? दैट्स बिकॉज़ उसके पीछे पूरी थ्योरी है, ठीक है? अगर आप एक लोगो भी बना रहे हो ना, उस लोगो की स्केलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस ये नहीं कह सकते कि भई मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसमें ये रंग ऐड कर दो, इसके अंदर स्ट्रोक डाल दो, लोगो के पीछे आपने जो है एक ग्रेडिएंट डाल दी है, आपने कहा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है डिजिटली। अब आपका बिज़नेस अगर आपने कहा कि भई एक जैसे कि आपने एक सूटकेस का बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने कहा कि भई सूटकेस के ऊपर जो लोगो मुझे डिजिटली अच्छा लग रहा है, बस मुझे यही लोगो चाहिए। तो भई आप ये सोचो कि अगर आपने वो लोगो अपने सूटकेस के ऊपर लगाना है, तो आप उसको ग्रेडिएंट के साथ नहीं लगाओगे। यू नीड अ स रॉक सॉलिड थिंग देयर। तो उसके पीछे पूरी स्टडी है, पूरी साइंस है, रिसर्च होती है। आपको अपनी कॉम्पिटिटर की चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भई हाउ आर थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ।
अब जैसे आपने पूछा था कि कोई लोग अ, 10,000 में भी बना रहे हैं चीज़ें, 7,000 में बना रहे हैं। देयर वाज़ अ टाइम व्हेन ₹1000 की पोस्ट बन भी पोस्ट भी बन जाती थी, कि भई ₹1000 मैं चार्ज कर रहा हूँ, ₹500 चार्ज कर रहा हूँ। दैट्स द रीज़न बिकॉज़ हमारे पास वो एक्सपोज़र नहीं है। आपके पास वो आँख नहीं है जो चीज़ देख के बता सके कि भई इंटरनेशनली ये काम एक्सेप्ट हो रहा है। दिस इज़ इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? अब यूजुअली ये होता है कि आपका क्लाइंट है, आपने क्लाइंट की बात सुननी है, एंड ऑफ द डे क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट। अब अगर आपके क्लाइंट्स के पास भी वो अंडरस्टैंडिंग है कि यार इंटरनेशनली अगर आप देख रहे हो, पूमा को देख रहे हो, आप एडिडास को देख रहे हो और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि स्टाइलो पे ऐसी चीज़ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि स्टाइलो का जो ओनर है वो चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। तो आई ऑल ऑफ थिंक दीज़ थिंग्स आर आई थिंक इसके अंदर एक और चीज़ है सहा, कि इट्स नॉट अबाउट द माइंडसेट, इट्स अबाउट द इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है? व्हाट आई पर्सनली बिलीव, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग एन आर्टिस्ट एंड बिकमिंग अ पर्सन हू नोज़ द टूल। ठीक है? बिल्कुल, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे। मेरा मेन सवाल ये है कि भई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अ, डॉक्टर को इतनी इज़्ज़त दी जा सकती है, ठीक है? तो डिज़ाइनर को क्यों नहीं? ठीक है? द बिल्कुल, पॉइंट इज़ कि लोग ल कुछ लोगों ने इस डिज़ाइनिंग फ़ील्ड को थोड़ा-सा ना बुरा कर दिया, ठीक है? आई हैव लाइक मल्टीपल डिबेट्स विद पीपल, कि मैं उनको कॉल करके बोलता हूँ कि यार, व्हाई आर यू गिविंग अ सर्विस दैट इज़ लाइक अ 1 लाख रुपीज़ चार्ज इन द इंडस्ट्री एंड यू आर गिविंग इट फॉर लाइक 30,000 रुपीज़? यू आर डिस्ट्रॉयिंग द मार्केट, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, आपको आपको ये आपकी चीप थ्रिल्स की वजह से देखें, सिंपल सी बात है कि एवरी टूल इज़ अवेलेबल तरीके से, और एवरी टूल इज़ आल्सो अवेलेबल इन द ब्लैक मार्केट एज़ वेल, ठीक है? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन एन आर्टिस्ट जो एडोबी जो है एडोबी का लाइसेंस ऑफिशियली लेता है, ठीक है? और दे आर पीपल हु जो क्रैक पे कर रहे होते हैं। जो ₹500 की पोस्ट बिल्कुल, बना रहा है, आई एम प्रीटी मच श्योर उसके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि अगर वो 17-18 हज़ार रुपए पर मंथ के दे रहा होता, तो आई एम प्रीटी मच श्योर वो ₹500 की पोस्ट नहीं बना रहा होता, ठीक बिल्कुल, है? डेफ़िनिटली, इसके अंदर मसला ये है, इसके अंदर मसला आता है कि दो दैट लूप होल्स, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लंबे टाइम तक आई थिंक अरीना मल्टीमीडिया एंड दीज़ डिप्लोमा कोर्सेज़ आर शिट, ठीक है? एंड व्हाई व्हाई आई थिंक दैट, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं और मैंने कहा यार, टूल्स सिखाना इज़ नॉट द स्किल, ठीक है? आप किसी को टूल सिखा रहे हो, बट देन आई मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल हू आर वेरी मच टैलेंटेड, एंड आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि फिर मैंने माइंडसेट चेंज करा कि इंस्टीट्यूशनल का काम आपको स्पेसिफिक चीज़ सिखाना होता है, क्योंकि वो आपसे एनडीए साइन तो कर ही नहीं रहा, कि भाई ठीक है, सहार एग्ज़ैक्टली, सहार आई हैं, सहार से उन्होंने एक एनडीए साइन कराया कि अब आप यहाँ से निकलेंगी तो आपको 2 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी, ठीक है? बिल्कुल, तो वो चीज़ तो एक चीज़ मेरे दिमाग में समझ में आई मुझे कि चलो ठीक है यार, अब इट्स लाइक देयर आर पीपल हू वांटेड टू हैव अ फिजिकल क्लासेस एंड देयर आर इंस्टीट्यूट फॉर इट, एंड ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट पागल तो नहीं है ना, अगर वो इतने इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स होंगे, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, But then it comes to people, what I see when I shifted to UAE and when I meet different people, I do have friends who are working in Singapore, who are working in UK, US. I have different people. I have a friend who work in KSA as well. Her name is Sar. तो जब हम उनसे मिले तो हमने पता चला कि यार, द माइंडसेट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है? यहाँ पे आप लो बॉलिंग कर रहे हो, तो लोग आपको ना एप्रिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार, ये बहुत सस्ते में दे रहा है, इसका मतलब बहुत ही बकवास काम दे रहा हो। एग्ज़ैक्टली, या ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांना कम टू। पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, देयर आर मल्टीपल टाइम्स क्लाइंट रीच आउट टू मी एंड आई वाज़ लाइक कि ठीक है, एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट विल बी चार्ज्ड एंड दे वर लाइक कि यार इतने में तो ये कर रहा है, तो मैं कहता हूँ करा ले। And I seriously block that person, or I really don't want to talk that person again. ठीक है? Because you don't understand हर बंदे का टाइम कितना कीमती है, ठीक है? हो सकता बिल्कुल, है कि भाई किसी को ऐसा लगता है कि वो अगर किसी और ऐसा नहीं है, बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा ये काम इतने का करवा देंगे। मैंने कहा आप करवा लें, और जब वो काम होकर आता है ना, तो आप क्वालिटी मैच करके देखते हो और आप बोलते हो कि ठीक है, आप आपका कैलिबर वही है, तो आप उस कैलिबर पे मैच नहीं कर सकते, तो इसलिए इस वजह से आप हम आपका ब्रांड जो है ना,
वो एक अ, तारिक रोड की चौरंगी पे या किसी ना किसी छोटी जगह पे ही रह सकता है, वो कहीं ब्रांड नहीं बन सकता। ठीक है, एग्जैक्टली। ब्रांड की थ्योरी बड़ी अलग होती है, ब्रांड का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। सो दैट इज ऑल्सो। एक पूरी स्ट्रैटेजी के थ्रू चीजें चल रही होती हैं। अब वही बात है कि आप एज अ सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर आपकी जो सोच है ना, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज, एंड आई फील अब जाकर देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज जो कि दे आर लाइक कंप्लीटली राइजिंग अप एंड दे चेंजिंग द गेम कंप्लीटली। अगर आप उनके पास जाओ और आप उनसे बोलो कि यार XYZ है, ये महीने का टेंडर होगा, इसके अंदर जो है ना हमने इतनी पोस्ट बनवानी है, ये करना है, वो करना है। अब जो भी क्लाइंट आ रहा है दे आर जस्ट सेइंग कि यार मुझे बस इतना-इतना काम चाहिए, एंड व्हेन यू टेल देम कि भई मैंने इसके लिए आपको इतने विद XYZ आपको चार्ज करना है, दे गो लाइक इतने पैसे क्यों लगेंगे? तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि यू कैन एक्चुअली स्टैंड अप एंड टेल देम कि देखो यार, आप जो चीज़ माँग रहे हो ना, आपको रिज़ल्ट चाहिए। And in order to get that result, you need to invest, you need to trust the agency, you need to trust the designer. ठीक है? क्योंकि वो बंदा जिसने इतनी मेहनत की है, 5, 6, 10 साल लगाए हैं इंडस्ट्री के अंदर मेहनत करके, ट्रायल्स एंड एरर करके, अपनी नॉलेज को लगाकर, तो they know what's working and what's not working, and I feel working for an international client is a lot more easier than working in Pakistan as a freelancer as well. क्योंकि बाहर मुल्कों में, इवन इन सऊदी अरेबिया, इट्स वेरी मतलब इट्स रिलेटिवली ईज़ियर टू एक्सप्लेन टू देम कि आप इतना अमाउंट क्यों चार्ज कर रहे हो, वो आपकी स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं, वो आपके माइंडसेट को सुनना चाहते हैं, कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दे वर लाइक नहीं इतने पैसे क्यों चार्ज करें? अगेन रोलिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू के इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसकी वजह से एवरीबॉडी हैज़ अ बिट ऑफ यू नो बजट प्रॉब्लम कि इतने पैसे हम नहीं दे सकते इतनी सी चीज़ के लिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उस इतनी सी चीज़ के लिए जो आप पे कर रहे हो उसका उसके पीछे जो थ्योरी स्ट्रैटेजी है, दैट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दैट्स गोना बेनिफिट यू इन लॉन्ग टर्म, रादर देन आप शॉर्ट टर्म्स के लिए सोचो कि भाई हमने सोशल मीडिया बस अपना पॉपुलेट कर देना है, भरा हुआ दिखना चाहिए, कोई भी आए बोले कि भाई बड़ा काम हो रहा है इनके पास। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। इन सऊदी अरेबिया आई फील अ लॉट ऑफ पीपल दे मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। आई थिंक इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी सारे ऐसे ही होते हैं कि उनको रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो कहते हैं, "भई आपको अगर हम दे रहे हैं कोई पैसे, तो इफ यू आर चार्जिंग समथिंग, इट शुड बी वर्थ अ व्हाइल, रादर देन जस्ट सेइंग कि यार ये काम हो जाए बस।" काम तो होना है, बट दे मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, दे वांट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ROI क्या है? rather than just investing money or पाकिस्तान में आई फील रिलेटिवली इट्स अ लॉट प्रॉब्लमैटिक। आपको क्लाइंट्स को समझाना, आपके पास एक वो थोड़ा सेठिया मेंटालिटी है कि नहीं, ₹1 भी जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसमें कम कर लो पैसे किसी तरीके से। आई फील दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट देयर इज इन पाकिस्तान दैट नीड्स टू चेंज मेजरली इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ यू नो ब्रांड वर्क दैट वी आर डूइंग। But again, वही बात है कि there are a lot of people who have this understanding, a lot of brands that have this understanding जो कि invest करना चाहते हैं, they pay you the right amount, they understand, और वो भी I think वही लोग हैं जो बाहर से घूम कर आए हैं या जिन्होंने अपनी कुछ जिंदगी बाहर गुजारी है, तो they have this understanding rather than the people who are born and based in Pakistan. It's really difficult to deal with them in terms of all of this. हाँ, यू आर एग्री ऑन दैट पॉइंट कि माइंडसेट इज इज अ की कंपोनेंट राइट नाउ। अगर हम पाकिस्तान की ऐसे ही बात करते हैं, मूविंग टू अनदर पॉइंटर दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आई सी पीपल स्ट्रगलिंग इन दिस फील्ड। ठीक है, अगर मैं रेशो निकालूं तो शायद 95% ऑफ द पीपल हु आर इन द डिजाइन फील्ड स्ट्रगलिंग। ठीक है, either they are not happy with the budgets they have, either they are not happy with the salary, either they are not happy with the work, बट इट्स नॉट एन हैप्पी फील। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आई सी डिजाइनर्स वर्किंग फॉर 25,000 रुपीज एंड आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर मैनेजिंग देयर और फाइनेंस कंपनीज किस तरीके से और किस पेज पे रखनी और वो लोग कर क्यों रहे। दैट्स ऑल्सो अनदर डिबेट ऑफ इट, क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात ऐसे हैं और हर बंदे फिर मजबूरी में कोई कर ही ना कर, कोई ना कोई तो कर ही लेता है। ठीक है,
बिल्कुल। what are the key facts when you started your design field? ठीक है, what are the pointers that you think कि यार moving to another company, moving to another job, getting another client, these are the factors that I'm gonna be writing down. अगर ये check points clear होंगे, then I'll be switching to that person or that job or that client. तो उसको थोड़ा सा बताओ when you are move क्योंकि हर आप what I personally believe कि a designer role is like you started with agencies and settled down on MNC. And बिल्कुल, ऐसा ही है। after MNCs, working for MNCs, the next step is like make your own design studio. ठीक है? बिल्कुल, So you are at the MNC level right now. ठीक है कि चलो ठीक है मैं बिल्कुल। एक स्टेबल कंपनी में आ गई हूँ, मैं छोटी-मोटी एजेंसी में काम कर लिया, अब मैं स्टेबल कंपनी में आ गई। How was this letter goes? Are you someone who's looking to have the risk management get ठीक है after like 3-4 years I'm looking to make an agency because what I see people do that but they can't survive because being a designer we are creative. We don't understand the finance of it. We don't understand the dynamics of that thing because agar agency running an agency is the simplest thing because you just need three people: a designer, an account manager, a POC that is looking for everything. But to be very एग्ज़ैक्टली, honest, when it goes for finance and everything, you need to understand the fact that, bhai, this is a very different ballgame. So बिल्कुल। what's the pointer that you wanted to highlight on the risk management thing? किस तरीके से करते हो? How was everything going on? सो इनिशियली आई फ़ील अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई टूक माय फर्स्ट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, ठीक है? येस, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यू आर वेरी राइट ऑन दिस कि आपको स्टार्ट ऑफ एजेंसी के साथ करना चाहिए बिकॉज़ एजेंसी हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग the pace. It helps you in setting the pace. It helps you in working with different dynamic different dynamic clients. जैसे कि आपके पास different industries आ जाती हैं. You've got retail, you've got banking sector, you've got other B2B companies, you've got B2C companies. तो वो सब सारी चीज़ें I think agency से start off करना बहुत ज़रूरी होता है. Why? Because it helps you in a lot of things कि आपको एक तो बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है डिफरेंट डिज़ाइनर्स का जो डिफरेंट लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपको उनसे सीखने को मिलता है। अगेन वही बात है कि अगर इफ़ यू आर पैशनेट तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो दिन से रात हो जाए, रात से दिन हो जाए बिकॉज़ दैट इज़ अगेन अ थिंग इन एजेंसी कि आपके आने का टाइम होता है, आपका जाने का टाइम नहीं होता। एंड व्हेन यू आर लर्निंग आई थिंक उस टाइम पे आपकी सिर्फ अप्रोच लर्निंग होती है। आई थिंक दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स स्टार्ट देयर करियर। एजेंसी के अंदर आपको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं कि एक तो आपके पास हाई एंड क्लाइंट्स भी होते हैं, आपको उनका माइंडसेट समझने को मिलता है। इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें अगर आप थोड़ा-सा मिंगल अराउंड करो तो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि भई अच्छा क्लाइंट डीलिंग क्या है, किस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं। फिर आपका जो हेड ऑफ डिज़ाइन होता है उसके साथ आपको एक पॉलिश होने का बड़ा मौका मिल रहा होता है, कि आपकी जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, आपकी कोई अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। इवन आई फ़ील व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एट एन एजेंसी अगर आप समझ रहे हैं कि आप एक पोस्ट डिज़ाइनर अच्छे हैं एंड लेटर ऑन यू अंडरस्टैंड कि मे बी एक प्रिंट मीडियम इज़ समथिंग दैट्स गिविंग मी अ लॉट मोर फ्रीडम, अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ वर्क तो मेरे लिए वो चीज़ के ऊपर नेविगेट करना आसान हो जाएगा। तो आई थिंक एजेंसी आपको वो एक प्लेटफ़ॉर्म भी दे रहा होता है कि आप अपनी डिज़ाइन इज़ अ ह्यूज अम्ब्रेला उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। You've got animation, you've got print design, you've got digital designs, then you've got web design. तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने को मिलती हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करता है इनिशियली। फिर उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड ऑन मे बी लेटर ऑन 1 टू 2 इयर्स आई थिंक गुज़ारने चाहिए उसमें एजेंसी के अंदर, जहाँ तक आपको ऐसा लगे कि आपकी ल आप you've रीच्ड अ टॉप टियर लर्निंग कर्व, ठीक है? आपने वो चीज़ अचीव कर ली है, उसके बाद आई फ़ील आप किसी ब्रांड में मूव कर जाओ। यू फ़ील कि यार बैंकिंग सेक्टर इज़ समथिंग जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। आई कैन टेक केयर ऑफ ऑल द डिज़ाइन एस्पेक्ट्स ऑफ इट तो आप फिर उसमें मूव कर जाओ। यू कैन एक्सपेरिमेंट अंडर एन एजेंसी एज़ वेल कि भई अगर आपने ये सोच लिया है कि हाउ विल आई मूव फ्रॉम दिस
डिज़ाइन पार्ट टू अनदर सेक्टर, तो आपके पास एक एनिमेशन में मूव करने का भी एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है आपको। फिर उसके बाद यही होता है कि आप फिर ब्रांड में मूव कर जाओ, ब्रांड में फिर यू गेट टू एक्सपेरिमेंट मोर, आपको हायरार्की में मूव करने को मिलता है। I think that is something you get elevated towards your designing capabilities. फिर उसके बाद ये है कि हाँ, later on when you feel I think 5 से 6 साल जो होते हैं they're like really good for you when you work under an agency and a brand. उसके बाद फिर आपके लिए आसान हो जाता है इस चीज़ को नेविगेट करना। In terms of risk management, I would say कि I think having contracts laid is very important. अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा-सा इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जा रहा होता। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दूसरी कंपनी में मूव भी कर जाता है। बट आपको यही देखना चाहिए कि व्हाट इज़ हेल्पिंग यू इन लर्निंग एंड व्हाट इज़ हेल्पिंग यू इन ग्रोइंग। तो वो चीज़ें आई थिंक काफ़ी मदद कर रही होती हैं आपको इन टर्म्स ऑफ हैविंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हैविंग यू नो abiding by the rules is very important. And I think Bahar, even in Saudi, it's really strict when you talk about contracts. पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं, बट सऊदी के अंदर यू कैन नॉट ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कांट डबल क्रॉस एनीवन बिकॉज़ यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, पाकिस्तान में ये चीज़ें काफ़ी ईज़िली ली जा रही होती हैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक इट गोज़ अबाउट। I think we have covered a lot of things, and I totally agree with the point that you have mentioned अभी कि difference तो है, ठीक है? ethics में भी difference है, work ethics में भी difference है, dynamics में difference है, and overall thought process बहुत different है. But at the end of the day, you need to start from scratch and grow each and every step one by one. Pretty much sure, Sar, we have covered a lot of pointers, and I'm happy that we have this session and a lot of people will learn from it. And if they wanted to have any thought on it or any idea, they might reach out to you on LinkedIn directly, and I'll be happy if you can help in that way as well. But thank you so much. Thank you so much, Sar. Thank you so much for your time. It's a very nice session with you. I hope a lot of people will learn a lot of different things from this. Thank you so much, Umair. It was lovely from my side as well. Thank you for having me.